नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। ज़ेड न्यूज़ के ख़बरनामे में आपका इस्तकबाल है। मैं सलमान ख़ान। आगे बढ़ने से पहले सुर्खियों पर नज़र डालते हैं। नायब वज़ीर आला भट्टी विक्रमार्का ने हैदराबाद में मुनक़िदा इंडिया एनर्जी समिट एंड एक्सपो 2026 का किया इफ्तिताह और कहा, रियासत क्लीन एनर्जी मरकज़ बनने की समेत तेज़ी से आगे बढ़ रही है। तेलंगाना तहरीक के कारकुनों की शनाख्ती कमेटी के चेयरमैन डॉक्टर के केशव राव की रिहाइशगाह पर आला सतही जायज़ा इजलास, वज़ीर पुन्नम प्रभाकर और दीगर की शिरकत। बीजेपी की मरकज़ी हुकूमत SIR के नाम पर वोटों को हज़फ करने की कर रही है साजिश, तेलंगाना के वज़ीर जूपल्ली कृष्णा राव का इल्ज़ाम। पी सुदर्शन रेड्डी के मुजस्समे को मुबैना तौर पर गैर कानूनी तरीके से हटाए जाने के बाद हनमकुंडा में सूरत हाल कशीदा, कई BRS कायदीन गिरफ्तार। एजेंसी इलाकों को मुल्क के लिए मिसाली पंचायतों के तौर पर तरक्की दी जानी चाहिए और देही तरक्की में सरपंचों को कायदाना किरदार अदा करना होगा, रियासती वज़ीर सीतक्का का बयान। हितफास्ट और हैदराबाद सिटी पुलिस की बड़ी कार्रवाई, तकरीबन 130 मुकामात पर छापे मारकर 36 टन मिलावट शुदा घी जब्त। अब पेश है खबरों की तफसील। तेलंगाना के नायब वज़ीर आला भट्टी विक्रमार्का ने कहा कि रियासत साफ तवन्नाई क्लीन एनर्जी मरकज़ बनने की समेत तेज़ी से आगे बढ़ रही है। उन्होंने हैदराबाद में मुनक़िदा इंडिया एनर्जी समिट एंड एक्सपो 2026 का इफ्तिताह करते हुए सरमायाकारों, सनअतकारों और टेक्नोलॉजी माहिरीन को तेलंगाना में सरमायाकारी की दावत दी और कहा कि हुकूमत रियासत को सरमायाकारों के लिए बेहतरीन मंजिल बनाने के लिए पुरअज़्म है। उन्होंने बताया कि तेलंगाना का हदफ 2030 तक 20,000 मेगावाट शमसी तवन्नाई, 4 लाख टन ग्रीन हाइड्रोजन की सालाना पैदावार और 2035 तक 12,000 EV चार्जिंग स्टेशन कायम करना है। उन्होंने कहा कि साफ तवन्नाई के शोबे में सरमायाकारी करने वाली कंपनियों को मुख्तलिफ सहूलत दी जाएंगे और हुकूमत निजी शोबे के इश्तराक से तेलंगाना को क्लीन एनर्जी मैन्युफैक्चरिंग का आलमी मरकज़ बनाने के लिए काम कर रही है। That is also why gatherings such as the India Energy Summit matter, because the energy sector can no longer operate in silos. Generations cannot be discussed without transmission. Renewable cannot be discussed without storage. Electric vehicles cannot be discussed without charging infrastructure. Green hydrogen cannot be discussed without renewable electricity. Data centers cannot be discussed without availability. And none of these can be discussed without finance. The purpose of a summit such as this should therefore go beyond speeches and presentations. A successful summit must produce conversations. Conversations must produce partnerships, and partnerships must ultimately produce projects. That is what we hope will happen here. Telangana's invitation is very clear to the investors, entrepreneurs, technology companies gathered here today. I want to extend a very clear invitation. Come to Telangana, bring us your technology, bring us your ideas, bring us ambitious projects, and bring us difficult problems to solve. You will find here a government willing to engage a strong technology ecosystem, talented young people, major energy opportunities, and a state determined to execute. India's energy transition will not ultimately take place inside conference rooms in Delhi or in international declarations. It will happen only on the ground. It will happen in our states, in our cities, in our factories, in our farms, and in millions of decisions made by citizens and business. Telangana intends to be the forefront of that transformation. We want to demonstrate that clean energy and economic growth
are not competing objectives. Properly designed, one can become the engine of the other. That is the opportunity before us. From renewable energy to storage, from intelligent grids to green hydrogen, from electric mobility to clean manufacturing, we are building the foundation of Telangana's next economy. And I invite all of you to help us build it. Let Telangana not merely consume the energy of the future. Let us create it, store it, manufacture it, intelligently manage it, and build new prosperity around it. Together, let us power not only Telangana's future, but India's also. I invite all of you, the investors, innovators, scientists, CEOs, come. Telangana is a state to encourage all kinds of investors, and it is a heaven for the investors. The state is willing to welcome you with wholeheartedly to share our prosperity and grow together. Thank you very much, and Jai Hind and Jai Telangana. तेलंगाना तहरीक के कारकुनों की शनाख्ती कमेटी के चेयरमैन डॉक्टर के केशव राव की रिहाइशगाह पर आला सतही जायज़ा इजलास मुनाकिद हुआ, जिसमें वज़ीर पुन्नम प्रभाकर, MLC प्रोफेसर M कोदंडा राम और दीगर अराकीन ने शिरकत की। इजलास में तहरीक के कारकुनों की दर्जा बंदी, शनाख्त और इनके फलाह के लिए इक़दामात के मुसव्वदे पर तफसीली गौर किया गया, जबकि मुख्तलिफ़ अवामी तंजीमों से मौसूला तजावीज़ का जायज़ा भी लिया गया। कमेटी ने ऐलान किया कि जल्द ही ऑनलाइन पोर्टल के ज़रिए दरख्वास्तें वसूल की जाएंगी और शफाफ तरीक़ेकार इख्तियार किया जाएगा। इजलास में शहदा के ख़ानदानों, ज़ख्मी कारकुनों, जेल जाने वाले अफराद, मुक़दमात का सामना करने वालों और दीगर फ़ाल तहरीककारों को मुनासिब शनाख्त और फलाही सहूलतें फ़राहम करने नेज़ जामे रिपोर्ट तैयार करके वज़ीर आला रेवंत रेड्डी को पेश करने का फ़ैसला किया गया। तेलंगाना के वज़ीर जुपल्ली कृष्णा राव ने इल्ज़ाम आयद किया कि बीजेपी की मरकज़ी हुकूमत SIR ख़ुसूसी जामे नज़रसानी के नाम पर वोटों को हज़फ करने की साजिश कर रही है। उन्होंने कहा कि तेलंगाना में भी बड़ी तादाद में वोट हज़फ होने का ख़दशा है, इसलिए कांग्रेस कारकुन और अहले वोटर्स को चौकस रहते हुए अपने हक़ राय दही का तहफ़्फ़ुज़ करना चाहिए। वज़ीर ने कहा कि अहले वोटरों के नाम भी फ़हरिस्त में शामिल हो सकते हैं, इसलिए नोटिस का इंतज़ार किए बग़ैर ज़रूरी दस्तावेज़ात के साथ फॉर्म 7 जमा कराया जाए। उन्हें बूथ सतह पर मुसलसिल जायज़ा इजलास मुनाकिद करने की हिदायत देते हुए कहा कि रियासती हुकूमत तरक्याती और फलाही मनसूबों पर मौसर अंदाज में काम कर रही है और आवाम के हक़ूक़ के तहफ़्फ़ुज़ के लिए हर मुमकिन इक़दामात जारी रखे जाएंगे। మానేజ్వర్గాన్ని చూసుకొని మనం పోవాలి, మనం పోవాలి అంటే దీని సీరియస్నెస్ను ప్రాముఖ్యతను అర్థం చేసుకోవాలని మన బాధ్యత. మీ ఓటే కాదు, ఇలా ప్రభుత్వం వచ్చింది అంటే రేపు ప్రభుత్వం రావాలి, ప్రజలే ఓటు వేసింది. మరి ఓట్లు ఉన్నప్పుడేమో ఇంటింటికి పోయి అడుగుతామన్నప్పుడు మరి మన బాధ్యత రాజ్యాంగం కల్పించిన హక్కు ప్రతి ఒక్కరి ఓటును ఎవరు ఓటు తొలగించడానికి వీలు లేదు. అంటే వీళ్ళని కూడా ఆధారం చేయించుకోవాలి. ఆ బాధ్యత కూడా మనదే. తెలిసిన వాళ్ళు తెలియని వాళ్ళకు తెలియజెప్పడమే రాజకీయ నాయకుల యొక్క లక్ష్యం. వాళ్ళు మిమ్మల్ని వాళ్ళ పనులలో కార్యకష్టం చేసుకునే వాళ్ళు ఒక రోజు పని పోతే మనకు రోజుకు 400, 500, 1000 నష్టపోతుంది. సో ఆ బాధ్యతలో మన పైన పెట్టుకొని రోజుకు ఒక గంట ఇది చేసే దర్శనం కూడా చెప్తారు. గతంలో మనం బూత్ కంపెనీ వేయడం జరిగింది. ఒక్కొక్క బూత్కు 10 మంది ఒక్కొక్క బూత్. సో బూత్కు 1000 ఓట్లు ఉంటాయి. 1000 ఓట్లు 10 మంది అంటే ఒక్కొక్క బూత్ మెంబర్కు 100 ఓట్లు వస్తాయి. 100 ఓట్లు వస్తాయంటే ఇంట్లో 3 ఓట్లు ఉంటాయి అనుకుంటే 33 ఇళ్ళు వస్తాయి. 33 ఇళ్ళు. సో ఒక
యొక్క బూత్ కమిటీ మెంబర్ కేవలం బిఎల్ఏనే మొత్తం చేయాలి కాకుండా బిఎల్ వెంట పెట్టుకొని ఆ బూత్ కమిటీ మెంబర్ ఆ 30 కోట్లు తిరగాలంటే రోజుకు 2 నీళ్ళు తిన ఒక పావు గంట కూర్చున్నా రోజు 4-10 తిరగవచ్చు అంటే 3 రోజులు అయిపోతుంది. సో కాబట్టి ఆ బూత్ కమిటీ వాళ్ళను బూత్ కమిటీ మెంబర్స్ను చదువు వచ్చిన వాళ్ళను అవగాహన ఉన్న వాళ్ళను రాతాపూత వచ్చిన వాళ్ళను అవసరం ఉంటే బూత్ కమిటీల మెంబర్ను మార్పు చేర్పు చేసుకుంటే మీకు ఈ యొక్క పని అనేది చాలా సులభం అవుతుంది. రెండవది ఇవన్నీ కూడా సర్టిఫికెట్లు ఇవన్నీ సపోజ్ మీరు ఆలస్యం చేసి రిజర్వ్ చేసారు చివరి 3 రోజులు దాచుకొని అదే టైం అయిపోతుంది కదా చెప్పిపోతే అప్పుడు మీకు ఏదైనా సర్టిఫికెట్ కావాలంటే అప్పటికప్పుడు మీ సేవలు అప్లై చేస్తే అది రావడానికి ఎంత పడుతుంది. అధికారులు అందుబాటులో ఉండకపోవచ్చు, దొరకపోవచ్చు. చివరి విషయంలో వాళ్ళు సబ్మిట్ చేయకపోతే ఆ ఓటు గలత్ అయిపోతుంది. అంటే ఆ యొక్క నిర్లక్ష్య ఖరీదు గ్రామంలో 10-50 పోయినాయంటే రేపు పొద్దున మీరు సరే మన సర్పంచ్ అయిపోయినాయి మళ్ళీ సర్పంచ్ వస్తాయి. मरहूम पी सुदर्शन रेड्डी के मुजस्समे को मुबैना तौर पर गैर कानूनी तरीके से हटाए जाने के बाद हनमकुंडा में सूरत हाल कशीदा हो गई। इस वाक़े पर एहतजाज के लिए नरसमपेट रवाना होने वाले काउंसास कौंसिल में कायद हस्ब इख्तिलाफ मधुसूदन चारी समेत BRS के कई कायदीन को पुलिस ने हिरासत में ले लिया। वाक़े के बाद इलाके में कशीदगी के पेश नज़र पुलिस की भारी जमीयत तैनात कर दी गई। మీరే మాతో మాట్లాడుతున్నారు కాబట్టి మీతో మేము మాట్లాడుతున్నాం. పైవాళ్ళు కాదు కదా, వచ్చింది మీరు అంటున్నది మీరు మీతో మాట్లాడుతుంటే మీ పైవాళ్ళతో ఎట్లా మాట్లాడతాం? మేము ప్రివెంటివ్ అరెస్ట్ చేయమని మాకు ఇన్స్ట్రక్షన్స్. ప్రివెంటివ్ అరెస్ట్ అంటే పెద్ద సుదర్శన్ రెడ్డి అంటే ఇప్పుడు తెలంగాణ గడ్డ మీద మళ్ళీ ఏమైనా ఆంధ్రలో రాజకీయాన్ని ఇక్కడ వృద్ధ తెలుసుకున్నారా? తెలంగాణ కాదండి, ఆర్గ్యుమెంట్ కాదు కదా, మా ఆవేదన అర్థం చేసుకుంటాం. మీరు అర్థం చేసుకోవాలి. మేము ఉద్యమకారులము, తెలంగాణ వచ్చిన వాళ్ళము, మా గడ్డ మీద మా ఓన్ని మేము చూడు. ఇటువంటి ఎన్నో ఎదుర్కొని వేల మంది చట్టాన్ని కానీ మేము మాట్లాడే మాటల్లో హేతు పెద్దలు అర్థం చేసుకుని విచక్షణ మీకు ఉన్నదని మాట్లాడుతున్నాం. మేము కొట్లాడేటోళ్ళం కాదు. మేము ఏమంటున్నాం, పెద్ద సుదర్శన్ రెడ్డి గారికి అక్కడ అవమానం జరిగింది కాబట్టి ఏ గడ్డ మీద ఏ గడ్డ కోసం కొట్లాడిందో ఆ నాయకునికి అవమానం అన్యాయం జరిగింది కాబట్టి మేము దానికి ఎదుర్కోవడానికి లేదా ఆయన సుదర్శన్ రెడ్డి ఆత్మ మేమంతా ఆయన బలగం కాదా? మేమన్నా మీకు శత్రువున్నామా? మీతో మాకు మీరు 100 మంది రండి, అందరం నర్సంపేట పెద్ద సుదర్శన్ రెడ్డి గారి విగ్రహాన్ని రూపాలు లేకుండా చేసి సార్ వినోద్ रियासती वज़ीर सीतक्का ने कहा कि एजेंसी इलाक़ों को मुल्क के लिए मिसाली पंचायतों के तौर पर तरक्की दी जानी चाहिए और देही तरक्की में सरपंचों को क़ायदाना किरदार अदा करना होगा। उन्होंने ज़ोर दिया कि PESA क़ानून के तहत हासिल ख़ुसूसी इख्तियारात से भरपूर इस्तिफ़ादा हासिल किया जाए और रियासती हुकूमत एजेंसी इलाक़ों की हमाजहत तरक्की के लिए मुकम्मल ताउन फराहम करेगी। उन्होंने कहा कि सरपंच सिर्फ मुंतज़िम नहीं बल्कि देहात के रहनुमा बने। ग्राम सभाओं को समाजी तब्दीली का मौसर प्लेटफॉर्म बनाया जाए और सियासी वाबस्तगी से बालातर होकर तमाम मुस्तहिक़ अफराद तक हुकूमती फलाही स्कीमों के फ़वाइद पहुँचाए जाएँ। वज़ीर ने मुकामी वसाइल के ज़रिए रोज़गार के मौक़े बढ़ाने,
रिवायती ग़िज़ाई मसनूआत को फ़रोग़ देने और क़बायली ख़वातीन को मुआशी तौर पर बाइख्तियार बनाने पर ज़ोर देते हुए कहा, आप क़ियादत करें, देहात को तरक्की की राह पर गामज़न करें, हुकूमत हर कदम पर आपके साथ है। మీ గ్రామ అభివృద్ధికి ఇప్పుడు అక్కడ ఏదైనా మైనింగ్ అవుతుంది లేదా ఏదైనా వేరే బిజినెస్ వస్తుంది, వాళ్ళ దగ్గర నుంచి మరి జిఎస్టీ లేకుంటే రకరకాల పన్నులు వసూలు చేస్తూ ఉంటారు, లేదా ఎవరైనా వేరే స్పెషల్ ఫండ్స్ ఇస్తూ ఉంటారు. అవన్నీ కూడా మీరు యూజ్ చేసుకునేటట్టుగానే వాడుకునేటట్టుగానే మనం చేయడం జరుగుతూ ఉంది. కాబట్టి రోడ్ వేసినామా, బడి కట్టినామా, గుడి కట్టినామా అని కాకుండా రోడ్ వేయడం మూలంగా ఎంత ఉపయోగం ఉంది, మనుషులకు అట్లనే వాళ్ళ జీవితంలో ఎంత మార్పు వచ్చింది, వాళ్ళకు ఆదాయం ఏం చూపిస్తున్నాము, ఇట్లాంటివి కూడా మనం వెతుక్కోవాలి. దాతలు కూడా ఉంటారు స్పెషల్గా. ఆ దాతలు ఏమైనా సాయం చేస్తే గ్రామ పంచాయతీలో వాళ్ళ పేరు పెడతాం, మా గ్రామానికి ఇది కట్టియండి, లేకుంటే ఈ అమ్మాయిని చదివియండి, లేకుంటే ఈ కుటుంబాన్ని, అట్లా కూడా మీరు బాధ్యత తీసుకొని చేయొచ్చు. కాబట్టి 5 ఏళ్ళ ఈ పరిపాలనలో మీరు అందరూ ఒక ఆడబిడ్డల్లా ఆ ఊరు కోడళ్ళు అయి ఉంటారు, లేదా ఆ ఊరు బిడ్డలు అయి ఉంటారు. మన చివరి ముగింపు దాదాపుగా అక్కడే ఉంటుంది. మన పరిపాలనలో స్వర్ణయుగం అని అనుకోవాలి జనాలు. అరే పలానా సర్పంచ్ గారు ఉన్నప్పుడు మా ప్రతి ఇంటి ఆడబిడ్డ లెక్క మాకు ప్రతి కష్టం వచ్చినా మనం అందరికీ డబ్బులు సాయం చేయలేకపోవచ్చు, ఎందుకంటే మన ఆర్థిక వ్యవస్థ కూడా ఉంది. కానీ కొన్ని ఎమర్జెన్సీ కేసులు ఉన్నప్పుడు, మరీ ఇబ్బందులు ఉన్నప్పుడు ₹1 అక్కడ ఇక్కడ వసూలు చేసిన వాళ్ళ ప్రాణాలను కాపాడడానికి, లేదా పిల్లల్ని చదివించడానికి, లేదా ఇంకా వాళ్ళకు సపోర్ట్ ఉండడానికి కూడా మనము సహకారం అనేది చేయాలి. ఇది మనము చేసుకున్న ఒక అదృష్టం సర్పంచ్గా ఎదగడం. ఎవరు వచ్చినా నిన్న మేము పైలాన్ रियासती वजीर कोमट रेड्डी वेंकट रेड्डी ने नलगुंडा म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के 3रे डिवीज़न में एसटी कॉलोनी से 9 करोड़ 40 लाख रुपए की लागत से तामीर होने वाले हाई लेवल ब्रिज और सड़क मंसूबे का संग बुनियाद रखा। उन्होंने कहा कि नलगुंडा को रियासत का नंबर 1 म्यूनसिपल कॉरपोरेशन बनाने के लिए बड़े पैमाने पर तरक्याती काम जारी है। वजीर ने बताया कि शहर में 500 करोड़ रुपए से सड़कों की तामीर, 83 करोड़ रुपए के वाटर प्लांट के ज़रिए जल 24 घंटे पीने के पानी की फराहमी और दीगर तरक्याती मंसूबों पर काम जारी है। उन्होंने कहा कि हाई लेवल ब्रिज का काम 1 हफ्ते में शुरू होगा, जबकि गरीबों के लिए इंदिरम्मा मकानात और दीगर बुनियादी सहूलतें भी फराहम की जा रही है। రూపాయలు కేంద్ర ప్రభుత్వ నిధులు 200 కోట్లు నా డిపార్ట్మెంట్ ఆర్ఎండ్బి డిపార్ట్మెంట్ నిధులతోని ఔటర్ రింగ్ రోడ్ వేసుకొని ఇప్పుడు కొద్దిగా ఆలస్యమైనా సరే ఇక్కడ ఏదో షాపు కూడా ఇబ్బంది ఉన్నామని చెప్పి అంత పేదవాళ్ళు రామగిరి అంటేనే ఎంతో మంది పేదవాళ్ళు చిన్న చిన్న వ్యాపారాలు చేసుకుంటారు. ఇక్కడ ఎవరికి ఇష్టం కావద్దు అనుకుంటే పోలీసు వాళ్ళని పెట్టి గతంలో వెంకటేశ్వర గారిని అందరూ కూడా గర్వంగా చెప్తున్నారు. కోమటిరెడ్డి వెంకటరెడ్డి మనిషి అంటే ఎక్కడైనా మీకు మర్యాద వస్తుంది తప్ప ఎక్కడ కూడా ఒక తప్పు చేయడానికి పేరున్నది. हैदराबाद सिटी पुलिस के कमिश्नर टास्क फोर्स हेस्ट फास्ट ने महकमे फूड सेफ्टी के इश्तराक से शहर भर में मिलावटशुदा घी तैयार करने और फ़रोख्त करने वालों के मराकज़ के ख़िलाफ़ बड़े पैमाने पर कार्रवाई करते हुए 130 मुकामात पर छापे मारे। कार्रवाई के दौरान तकरीबन 36 टन मिलावटशुदा घी खाम माल खाम माल, पाम ऑयल, वनस्पति, मसनूई घी और दीगर केमियाई मादे जब्त किए गए। हुकाम के मुताबिक जाली घी 100% खालिस देसी घी के नाम से फ़रोख्त किया जा रहा था, जिससे अवामी सेहत को संगीन ख़तरात लाहक थे। हैदराबाद पुलिस कमिश्नर VC सज्जनार और एडिशनल कमिश्नर तफसीर इकबाल ने बताया कि ज़ब्तशुदा घी तेलंगाना और पड़ोसी रियासतों में होटलों, मिठाई की दुकानों, टिफ़िन सेंटरों, बेकरियों और आयुर्वेदिक मराकज़ तक सप्लाई किया जा रहा था। महकमे सेहत ने ख़बरदार किया कि ऐसे मिलावटशुदा घी के इस्तेमाल से दिल की बीमारियां, फालिश और जिगर व गुर्दों को नुकसान और दीगर सेहत के मसाइल पैदा हो सकते हैं। आवाम से अपील की गई है कि सिर्फ लाइसेंस याफ्ता दुकानों से दूध और दही याफ्ता दुकानों से दूध और घी खरीदें, जबकि मिलावट या गैर सेहत बख्श खुराक की इत्तला डायल 112 या हेच फास्ट हेल्पलाइन 8712661212 पर दें। ఎవరెవరు అక్కడి నుంచి వస్తున్నారో ఆల్టర్నేటివ్ రూట్స్ అనేది మనం ఇవ్వడం జరిగింది. ఇక్కడ మీరు కొన్ని చోట్ల ఇక్కడ ఉన్న వాళ్ళు పబ్లిక్ అందరూ కూడా కొంతమంది బికాజ్ ఇట్స్ ఎ వెరీ వెరీ స్మూత్ థింగ్ దే ఆర్ డ్రైవింగ్, ఎస్పెషలీ 45 నుంచి మీరు
కేబీఆర్ దాకా పోయేదాకా ఇట్స్ వెరీ వెరీ స్మూత్ బికాస్ ఆఫ్ రోడ్స్ వైడన్ ఉండడంతో అక్కడ ఈ స్ట్రెచ్ కేబీఆర్ నుంచి ఇక్కడ బసవ తారకరావు హాస్పిటల్ నుంచి ఇక్కడ మనము అగ్రసేన్ వచ్చేదాకా అక్కడ కొంతము మనము ఇబ్బంది అంటే మోస్ట్లీ ఇట్స్ బికాస్ ఆఫ్ ది టెరైన్ అప్ అండ్ డౌన్ కొంచెము ఈ బస్సెస్ వల్ల కూడా కొంచెము మనకు ఇబ్బంది కావడం జరిగింది. వాళ్ళు యూ టర్న్ చేయడంతో కొంచెం స్లో డౌన్ కావడంతో సో మనం కూడా అక్కడ టీఎస్ఆర్టీసీ అధికారులతో కూడా మాట్లాడడం జరిగింది. ఈ టెరైన్లు కూడా ఇంకా మనం ఏమాత్రం టెక్నికల్ చేయవచ్చు అనేది కూడా నేను మన జిహెచ్ఎంసీ కమిషనర్ కన్నను అందరూ కూడా అక్కడ జోనల్ కమిషనర్ సంతోష్ మన జోయల్ డేవిస్ కాజల్ అందరూ కూడా చూడడం జరిగింది. మనం స్టడీ చేసి డెఫినెట్లీ ఎంత మ్యాక్సిమం ఇన్కన్వీనియన్స్ అది తగ్గించడానికి మా వంతు కృషి చేస్తాం. इलेक्ट्रॉनिक और प्रिंट मीडिया के दोस्तों का हैदराबाद सिटी पुलिस की तरफ से अभिनंदन करता हूँ, स्वागत करता हूँ, खैर मकदम करता हूँ कि आप आए और जो पब्लिक से जुड़ा हुआ एक बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है सेहत से और उनके खान पान से जुड़ा जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है उसको कवर कर रहे हैं. अभी जैसे वैभव साहब ने आपको बताया, सीपी साहब ने भी ब्रीफ किया कि हमारे HFAST टीम में जो हम 5-6 महीने से जो लोग रेड कर रहे हैं, बहुत जो इंफॉर्मेशन पब्लिक से और डिफरेंट सोर्सों से आ रही है, उसके मद्देनजर जो HFAST टीम्स काम कर रही है उसी के मद्देनजर ये ऑपरेशन किया गया है, जो कि हमारे सीपी साहब के डायरेक्ट इंस्ट्रक्शंस पे और डीसीपी टास्क फोर्स वैभव साहब और उनके पूरे टीम की तरफ से पूरा एक घी मिल्क प्रोडक्ट से रिलेटेड पूरे रेड्स किए गए. इस रेड्स में 130 एस्टेब्लिशमेंट को चेक किया गया और जिसपे इंफॉर्मेशन पब्लिक की तरफ से मिल रही थी उसमें 39 घी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स थे और 91 बेचने के आउटलेट्स थे. उन सब में जहाँ पे कंप्लेंट्स थे वहाँ पे रेड किया गया और रेड करने के बाद जो है जब टेस्ट किया गया, उनको लैब्स में टेस्ट किया गया तो टेस्ट का रिपोर्ट्स आपके सामने पैरामीटर्स के साथ साइंटिफिक तरीके से वो टेस्ट का रिपोर्ट रखा गया है, जो कि आम पब्लिक के लिए बहुत मुश्किल है करना. इसमें जो है सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि 2 तरह का जो मिलावट हो रहा है घी में और मिल्क प्रोडक्ट में. पहला मिलावट जो है जिसमें फैट है, एनिमल फैट मिल्क फैट है और उसमें पाम ऑयल, रिफाइंड पाम ऑयल, कर्नल ऑयल और कुछ टेक्सचर्स मिला के, कुछ रंग्स मिला के उसको मार्केट में बेचा जा रहा है और लेबल में लिखा जा रहा है कि इसमें 100% नेचुरल 100% मिल्क प्रोडक्ट है, जो कि टेस्ट से सिद्ध हुआ है कि इसमें ऐसा कुछ भी नहीं है. एक तो इसमें जो कलर मिलाया जा रहा है वो नॉट फिट टू मिक्स विथ घी प्रोडक्ट, वो भी है इसमें. दूसरा जो है स्किम मिल्क का यूज किया जा रहा है, उसमें कोई भी मिल्क प्रोडक्ट मिल्क फैट नहीं है. स्किम मिल्क में पाम ऑयल मिलाकर टेक्सचर के लिए स्टार्च, बम्बे रावा मिला के, उसके बाद बफेलो घी के लिए अलग कलर मिलाते हैं, मेटामिन कलर मिलाते हैं, फिर फ्लेवर कलर्स मिलाते हैं, फिर फ्लेवर्स मिलाते हैं, उसका रंग चेंज करके उसको मार्केट में. तेलंगाना रक्षण सेना की सरबराह की कविता ने ऐलान किया कि इनकी जमात इक़्तिदार में आने पर भू भारती लक्ष्मी स्कीम के तहत हर मुस्तहिक़ गरीब ख़ानदान को 1 एकड़ ज़मीन फराहम करेगी. उन्होंने इल्ज़ाम आयद किया कि मौजूदा कांग्रेस हुकूमत गरीबों के अराज़ियात को मुख्तलिफ मनसूबों के नाम पर हासिल करके बाअसर अफराद के हवाले कर रही है, जो नाकाबिल कबूल है. हमारे रिपोर्टर शेख मोहम्मद से बात करते हुए कि कविता ने कहा कि हुकूमत समाजी इंसाफ, वक्फ़ इमलाक की हिफाजत और वक्फ़ इमलाक की हिफाजत को यकीनी बनाए. उन्होंने ज़ोर दिया कि वक्फ़ जायदादें खुदा की अमानत है और इन्हें अवामी फ़लाह बहबूद के लिए महफूज रखा जाना चाहिए. साथ ही हुकूमत से मुतालबा किया कि गरीबों की ज़मीनों के तहफ़्फ़ुज़, वक्फ़ इमलाक की हिफाजत और मौलाली के खादिमीन के लिए मुनासिब रिहाइश फराहम करने के लिए फ़ौरी इक़दाम किया जाए. जय तेलंगाना. हम ये मानते हैं कि सोशल जस्टिस अचीव करने के लिए ज़मीन का होना लोगों के पास बहुत ज़रूरी है. ज़मीन का ओनरशिप बहुत ज़रूरी है, जिससे लोगों को सोसाइटी में इज्जत भी बढ़ती है और एक सेफ्टी एंड सिक्योरिटी नेट भी रहती है. हमारे मुल्क में कई बार ऐसे कोशिशें हुए थे, लैंड रिफॉर्म्स एक्ट आए थे, लैंड ओनरशिप दिया गया था अलग अलग सिचुएशंस में,
तो हम तेलंगाना में ये प्रपोज करते हैं कि तेलंगाना में जो लैंड है, लैंडलेस फैमिलीज है, उनको एक एक एकड़ ज़मीन दिया जाना चाहिए। हम जब भी सत्ता में आएंगे उस समय हम ज़रूर ये चीज़ अमल करेंगे और इस स्कीम का नाम हमने भूलक्ष्मी रखा है। फिलहाल जो तेलंगाना में कांग्रेस सरकार चल रही है, उन्होंने उनके मैनिफेस्टो में अनाउंस किया था कि असाइनमेंट लैंड्स जो होती है उनके ऊपर ओनरशिप राइट्स देंगे, लेकिन 30 महीने तकरीबन हो गए, आज तक उन्होंने राइट्स नहीं दिए हैं। तो हम कांग्रेस सरकार से ये डिमांड करते हैं, जो असाइनमेंट लैंड्स दिया गया है उनको ओनरशिप राइट्स दीजिए और लैंड रीडिस्ट्रीब्यूट करिए, सबको एक लेवल प्लेइंग फील्ड बनाइए, सोशल जस्टिस को तेलंगाना में लेके आइए। थैंक यू। जय तेलंगाना। के बारे में मैडम माइनॉरिटीज भी बहुत परेशान है जी। आज कई लोग जो है घर के से परेशान कर रहे हैं जी। कलेक्टर करने आप आके देखिए, इतनी दरखास्तें हैं लेकिन उसके ऊपर कोई एक्शन नहीं लिया जा रहा। सिर्फ वादे किए जा रहे हैं लेकिन वादे पूरे नहीं कर रहे, तो इसके ऊपर आपका क्या कहना है? बिल्कुल, जो वक्फ की लैंड्स है हम मानते हैं वो भगवान की ज़मीनें हैं और उनको लोगों के लिए और वर्शिप प्लेसेस को अच्छे बनाने के लिए यूज़ करना चाहिए। लेकिन हमने देखा है बहुत जगह कब्ज़ा हो गया है, बहुत ही जगह प्राइवेट लोग उसको मिसयूज़ कर रहे हैं। लेकिन लगातार जो भी सरकारें आ रही है सिर्फ सियासती वादे दे रहे हैं, लेकिन कभी उसके ऊपर अमलावरी नहीं हुआ है। हम मानते हैं औकाफ़ी ज़मीनों को सेव करना बहुत ज़रूरी है, उनको अच्छे यूटिलाइजेशन में लेके आना भी बहुत ज़रूरी है। आजकल तो बहुत कम रुपयों में उनको किराए पे दिया गया, लीज़ पे दिया गया, उन सबको भी ठीक करना बहुत इम्पॉर्टेंट है। तेलंगाना रक्षणा सेना से हम मान के चलते हैं कि औकाफ़ी ज़मीनों को प्रोटेक्शन भी मिलना चाहिए और उसके लिए हम कमिटेड है, काम करेंगे। आप एक बार वक्फ बोर्ड को विजिट करिए मैडम, बाजू की बिल्डिंग जो है कंस्ट्रक्शन के लिए 4 साल हो गया, लेकिन अभी तक इसको जो है कोई पूछने वाला हाल नहीं है, कोई पुरसाने हाल नहीं है मैडम। तो हमारी दरखास्त है आपसे कि आप बिल्कुल विजिट करेंगे और जो मॉस्क्स है हर जगह उनके रिपेयर्स पे भी और मॉस्क में जो काम करने वाले जो सालों से भगवान के सेवा में जो वहाँ खिदमत करने वाले लोग हैं उनको भी रहने के लिए तक जगह नहीं है, घर नहीं है, सैलरीज का बहुत ख़राब हालत है। लगातार लोग आके हमें एप्लीकेशंस दे रहे हैं, हम उनको भरोसा दिलाना चाहते हैं कि हम आपके साथ हैं, आपके लिए काम करेंगे। हम जब मौलाली के दरगाह पे गए थे तब भी हमने वक्फ बोर्ड चेयरमैन साहब के साथ रिक्वेस्ट किया था कि यहाँ के जो खिदमतदार है उन सबको आप ज़मीन दीजिए करके। देने का प्रोविज़न है, ज़मीन है, सिर्फ दिल नहीं है, बस वो दिल लाने का काम हम करेंगे। थैंक यू। जय तेलंगाना। मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुबारक मौके पर गुज़िश्ता 14 बरसों से मुनाक़िद की जाने वाली मुस्तहिक़ व गरीब लड़कियों की इज्तिमाई शादियों के सिलसिले में दुल्हनों और इनके वालिदैन व सरपरस्तों में शादी के मलबूसात तक़सीम किए गए। तक़रीब में सदर नशीन बल्दिया मोहम्मद यूनुस, काउंसलर मोहम्मद निज़ामुद्दीन, BRS अक़लियती सेल के सदर गोरेमिया सिकंदर और ख़तीब व इमाम ईदगाह सैयद ज़ियाउद्दीन क़ाज़ी ने शिरकत की। इस मौके पर मुक़र्रिरीन ने कहा कि मुस्तहिक़ ख़ानदानों की मदद करना इस्लामी तालीमात का अहम हिस्सा है। गोरे मियाँ सिकंदर ने बताया कि मरहूम M.A. अलीम की जानिब से शुरू किया गया यह फ़लाही सिलसिला आज भी जारी है, जबकि इस साल 26 अगस्त बरोज़ चारशंबा सुबह 9 बजे ईदगाह मैदान ज़हीराबाद में इज्तिमाई शादियों का इनेकाद किया जाएगा। सदर नशीन बल्दिया मोहम्मद यूनुस और काउंसलर मोहम्मद निज़ामुद्दीन ने इस खिदमत खल्क़ के काम को सराहते हुए मुंतज़िमीन को मुबारकबाद पेश की। इस मौके पर कमेटी के सदर अलहाज गोरेमिया सिकंदर, नायब सदर मोहम्मद अज़हर, रफ़ीक़ अंसारी, मोहम्मद मोइन, मोहम्मद वसीम, मोहम्मद अली समेत कमेटी के दीगर ज़िम्मेदारान व अराकीन मौजूद थे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया'i वल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि तय्यिबीन अत्ताहिरीन। ब्रादरान इस्लाम को इत्तला दी जाती है कि हर साल की तरह माह रब्बिल अव्वल के मौके पर जो ज़हीराबाद का माहौल है, अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह तबारक व तआला का एहसान अज़ीम है कि जो माहौल बना हुआ है 12 रब्बिल अव्वल को नादिर लड़कियों की जो शादियों का बेड़ा उठाए हुए हैं। अल्हम्दुलिल्लाह हर साल कुछ ना कुछ शादियां होते ही जा रहे हैं और आज इस साल के मिलाकर पूरे 100 शादियां मुकम्मिल हो चुके हैं, 1 सेंचुरी हो चुकी है। बेशक इसमें जो लोग मेहनत कर रहे हैं और सदर साहब मोहम्मद सिकंदर साहब, उप गोरे साहब और इनके साथ तमाम नौजवानों का जो साथ है, मोहम्मद अज़हर, मोहम्मद मोइन, मोहम्मद रफ़ीक़, मोहम्मद वसीम अकरम,
मोहम्मद मुक़ीद और जो भी इनके साथ जो काम कर रहे हैं वो लोग काबिल क़द्र हैं कि अल्लाह तबारक व तआला ने उनसे ये काम ले रहा है। अल्लाह ताला इसको कबूल फ़रमाए और इस काम में तरक्की अता फ़रमाए। और जो शादियां हो रहे हैं अल्लाह तबारक व तआला उन शादियों से अल्लाह इस्लाम पर इस्तिक़ामत नसीब फ़रमाए और उन्हें इस्लाम पर चलना उनके लिए आसान फ़रमाए। और आमतुल मुस्लिमीन से गुजारिश है कि ऐसे नेक कामों में बढ़ चढ़ कर काम लें और कौम का जिस काम में भला हो वो काम को पूरा करने की सलाहियतें पैदा करें। अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है कि मौला इसको कबूल फ़रमाए। और 12 रबीउल अव्वल के दिन जो शादियाँ इस साल भी 8 शादियाँ हैं, 7 शादियाँ हैं इंशाअल्लाह। पूरी तरह से पूरा जहेज़ भी दिया जा रहा है, कपड़े 8 जोड़े कपड़े वगैरह कुछ जो भी है जिस तरह से भी हैं वो मेहनत करके दिए जा रहे हैं। अल्लाह इसको कबूल फ़रमाए इन शादियाँ और ये रबीउल अव्वल के दिन तमाम ये शादियाँ इंशाअल्लाह मुकम्मिल हो जाएंगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मिलाद के मौके पर हर साल की तरह इस साल भी शादियों का एहतमाम किया गया है कि एक 14 साल से ये सिलसिला जारी है ज़हीराबाद में और ये सिलसिला इंशाअल्लाह आगे भी रहेगा। और बड़ी फ़ख्र की बात है कि ये नौजवान बच्चे साथ देने से ये काम यहाँ तक अंजाम हुआ है। अब तक के ये 7 शादियाँ मिला के 100 हुए हैं, 100 शादियाँ मुकम्मिल हो चुके हैं। इंशाअल्लाह आगे भी इसके इंतज़ाम रहेगा। आज वो दुल्हनों के कपड़े वगैरह तकसीम किए हैं। बस ये कपड़ों के साथ जो है ना पूरा फर्नीचर भी है, उसमें एक पलंग, अलमारी और स्टील का सामान पूरा मुकम्मिल सेट है जो हर एक जोड़े को दिया जाता है। और इंशाअल्लाह पूरे ज़हीराबाद के मुसलमान भाइयों से गुजारिश है कि उस दिन इस दावत में शिरकत करें। सदर मजलिस बैरिस्टर असुद्दीन अवैसी की हिदायत पर इंचार्ज महेश्वरम हल्का अहमद सादी की निगरानी में साबिक़ चेयरमैन जलपल्ली अब्दुल्ला बिन अहमद सादी ने शाहीन नगर डिवीज़न के 63 और 64 में उस्मानिया होटल से वेंकटापुर रोड तक मुसलसिल बहने वाले गंदे ड्रेनेज के पानी का मुआयना किया। इस मौके पर फौरी तौर पर मशीन लगाकर सफाई का आगाज़ किया गया। उन्होंने बताया कि तकरीबन 68 लाख रुपए की लागत से नई ड्रेनेज लाइन बिछाने के काम को जल्द मुकम्मल करने की हिदायत दी गई है ताकि आवाम को इस देरीना मसले से निजात मिल सके। इस मौके पर वार्ड नंबर 23 के साबिक़ा काउंसलर सैयद अली, वार्ड नंबर 6 के साबिक़ा काउंसलर शेख अलीम, वार्ड नंबर 28 के साबिक़ा काउंसलर मोहम्मद भाई, वार्ड नंबर 25 के साबिक़ा काउंसलर शेख खदीर, खलील बाबा और दीगर मौजूदीन भी मौजूद थे। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज नक़ीब मिल्लत अलहाज बैरिस्टर असुद्दीन साहब की हिदायत पर यहाँ पर डिवीज़न 64 जलपल्ली सर्कल 17 में जो VIP के पास बहुत दर से ज़रा से बहुत मुश्किल थी, यहाँ पर ये लाइन जाम होने की तरफ से पूरा रोड पे पानी आ रहा था। इसको देखते हुए अल्हम्दुलिल्लाह हमने नुमाइंदगी की थी। तकरीबन 68 लाख की लागत से ये तकरीबन ये पूरी मेन रोड जो रोशन होटल से लेके हबीब गार्डन, हबीब कॉलोनी से पूरा से निकल के पूरा मेन रोड पे जो पूरी जितनी लाइन जाम हो रही है उसका काम इंशाल्लाह 1-2 हफ्ते में शुरू होगा, जिसकी लागत 68 लाख से इंशाल्लाह यहाँ पर हमारे नुमाइंदा पूरे काउंसलर्स और हमारे साबिक़ा वाइस चेयरमैन जो पर्सन भी है और इंशाल्लाह यहाँ की जो आवाम की जो तकलीफ है हम यकीनन हम जानते हैं कि रोड पे पूरा पानी जाने की तरफ से बहुत मुश्किल हो रही है। उसको देखते हुए टेम्परवरी एक 3 दिन के लिए यहाँ पर एक गल्फर गाड़ी लगाकर पूरा ये लाइन जाम करेंगे। पूरे पीछे के 2 गलियाँ, ये सामने की रोड, ये पूरा तकरीबन जाम हो गया है। ये मेन लाइन चौक होने की तरफ से ये VIP के पीछे ये सामने का ये वो मेन रोड, ये जो उस्मानिया की जो मेन रोड है, फिर हबीब कॉलोनी की मेन रोड है, उसकी तरफ से पूरा जाम होकर यहाँ पर पानी रोड पे भरा। इंशाल्लाह एक हफ्ते के अंदर यहाँ पर काम शुरू हो जाएगा। टेंडर हो गया, इंशाल्लाह काम भी शुरू होगा। काम शुरू होने के बाद इंशाल्लाह हम आगे दौरा करेंगे। इंशाल्लाह यहाँ पर लोगों को तकलीफ से राहत होंगी। और मजीद और एक 4 करोड़ का भी काम सेंक्शन हुआ जो सेंट्रल मीडियम का है, जो मेन रोड डेवलपमेंट करने का है, जो मेन रोड पे जो डिवाइडर्स और उसके लिए स्ट्रीट लाइट और आजू बाजू फुटपाथ बनाने के लिए भी अल्हम्दुलिल्लाह उसकी भी नुमाइंदगी कर रहे थे, उसका भी काम सेंक्शन हुआ 4 करोड़ और मजीद और पैसे आने का है। इंशाल्लाह वो भी होकर यहाँ पर हम तरक्की जारी करेंगे, जारी रखेंगे इंशाल्लाह संसद की हिदायत पर और पूरे मिलकर हम काम करेंगे।
तेलंगाना एससी कॉरपोरेशन के साबिक चेयरमैन वाई नौरतम ने कांग्रेस हुकूमत पर कल्याण लक्ष्मी और शादी मुबारक स्कीमों को नज़रअंदाज करने का इल्ज़ाम आयद करते हुए कहा कि गरीब ख़ानदानों की बेटियों की शादी के लिए शुरू की गई इन स्कीमों को हर हाल में जारी रखा जाए। उन्होंने मुतालबा किया कि ज़र इल्तिवा इमदादी रकम फौरी तौर पर मुस्तहिक़ीन के बैंक खातों में मुंतकिल की जाए और हुकूमत अपने इंतखाबी वादों पर अमल करे। उन्होंने कहा कि हुकूमत हाई कोर्ट में बर वक्त काउंटर दाखिल करके क़ानूनी रुकावटें दूर करें, तमाम अहले मुस्तहिक़ीन को मुक़र्ररा वक्त पर इमदाद फ़राहम करें और इंतख़ाबात से कबल किया गया 1 तोला सोने का वादा भी पूरा करें। वाई नौरतम ने कहा कि ये किसी खैरात नहीं बल्कि गरीब आवाम का हक़ है और जब तक मुतालबात पूरे नहीं होते BRS अपनी जिद्दोजहद जारी रखेगी। सदर मजलिस फ़रुकन पार्लियामेंट हैदराबाद बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी की हिदायत पर महेश्वरम असम्बली हल्के के इंचार्ज अहमद सादी और MLC मिर्ज़ा रहमत बे क़ादरी की निगरानी में साबिक़ा चेयरमैन जलपल्ली अब्दुल्ला अहमद सादी ने जलपल्ली सर्कल 17 दफ्तर में एक जायज़ा इजलास मुनाक़िद किया। इजलास में महकमे इलेक्ट्रिसिटी, महकमे आबरसानी और महकमे सफाई के अफसरान ने शिरकत की, जहाँ कचरे की बर वक्त मुंतक़ली, ज़ेर ज़मीन नकासी आब और दीगर तरक्याती तजावीज़ पर गौर किया गया। इजलास में आने वाले मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मौके पर सफाई, रोशनी और बुनियादी सहूलतों के बेहतर इंतज़ामात की हिदायत दी गई। मिर्ज़ा रहमत बे क़ादरी ने कहा कि सदर मजलिस की खुसूसी तवज्जो से पहले भी तकरीबन 20 करोड़ रुपए के फ़ंड्स हासिल हुए थे, जिनसे तरक्याती काम अंजाम दिए गए और आइंदा भी मजलिस अवामी मसाइल के हल के लिए अपनी खिदमात जारी रखेगी। इस मौके पर साबिक़ा काउंसलर सैयद अली, शेख अलीम, हुसैन शाह, मोहम्मद भाई, शेख कदीर, असद भाई समेत दीगर अवामी नुमाइंदे, पार्टी अहदेदारान और कारकुनान मौजूद थे। सदर मोहतरम नक़ीब मिल्लत अलहाज बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब की हिदायत के ऊपर मैं और हमारे महेश्वरम असम्बली हल्के के मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के इंचार्ज जनाब अहमद सादी साहब मिलकर जलपल्ली बल्दिया ऑफिस में बल्दी बरक़ी आबरसानी के तमाम अहदेदारों के साथ एक रिव्यू मीटिंग लगाई गई। इसमें जो सदर मोहतरम नक़ीब मिल्लत अलहाज बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब की नुमाइंदगी के ऊपर तकरीबन 8.5 करोड़ रुपए की लागत से जो बल्दिया के काम मंजूर हुए हैं और उसमें से कुछ कामों के टेंडर्स हो चुके हैं और कुछ कामों का टेंडर ओपन होना है। तो इस ताल्लुक़ से बल्दिया कमिश्नर को बताया गया और ख़ास तौर पर जो गार्बेज लिफ्टिंग का, कचरे का जो मसला है, ये मसला इन एरियो में, सलम एरियो में लेबर नहीं रहने की वजह से, टिप्पर गाड़ियाँ नहीं रहने की वजह से, JCB नहीं रहने की वजह से, पॉप कट्स नहीं रहने की वजह से ये सफाई नहीं हो रही कचरे की। तो उस ताल्लुक़ से भी डिप्टी कमिश्नर साहब को बताया गया और उनसे पूरा हम एक पेपर लिए। वो पेपर में यहाँ पर कितने लेबर होना, कितने गाड़ी होना और कितने बॉब कट्स होना, तो पूरा उन्होंने बताया। इसके साथ ही साथ वाटर वर्क्स डिपार्टमेंट की तरफ से ये एरिया जब ग्रेटर हैदराबाद में मिला तो मिले बाद से लेके अब तक वाटर वर्क्स को सीवरेज सिस्टम नहीं गया। सीवरेज सिस्टम अभी भी GHMC के अंडर में है, मगर वो गवर्नमेंट में कुछ रुके हुआ है बोल के ये लोग सीवरेज के जो ओवरफ्लो के काम है और दूसरे मेंटेनेंस के काम है वो काम नहीं हो रहे। इसके साथ ही साथ जैसा कि बात एरियो में सीवरेज लाइन के जो मेंटेनेंस है, मैनुअल रिपेयर्स है या दूसरे बाद जगह कुछ पाइपां फूट जाते, वो भी मेंटेनेंस के काम ये लोग नहीं कर रहे। इस ताल्लुक़ से भी उनसे पूरा एक पेपर लिया गया, पूरा डिटेल, और इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट की तरफ से DE साहब, AE साहब को यही बताया गया कि हमारे जो इंचार्ज अहमद सादी साहब है, इनके साथ और हमारे पूरे सुदूर मुतमदीन रहेंगे और जिन जिन एरियो में जो लो वोल्टेज का प्रॉब्लम है उसको दूर करने के लिए नए प्रपोजल्स बनाने के लिए बताया गया। उसमें जैसा कि न्यू ट्रांसफार्मर्स हो या AB केबल हो या पोल्स हो, इन एरियो में यहाँ पर नए प्रपोजल देने के लिए बताया गया।
तीसरी चीज़ वाटर वर्क्स डिपार्टमेंट के जीएम साहब डीजीएम मैनेजर को भी ये बताया गया कि आप लोग भी कुछ प्रपोजल्स है तो दीजिए, हम सदर मोहतरम का लेटर लगा के हुकूमत से नुमाइंदगी करके वो मंजूर करवाएंगे। अल्हम्दुलिल्लाह आज अच्छी मीटिंग हुई यहाँ पर, और इसमें ख़ास तौर पर मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मौके के ऊपर जो इंतज़ामात रहते हैं वो इंतज़ामात के ताल्लुक़ से भी सफाई के और रोशनी के वो भी बताया गया। अल्हम्दुलिल्लाह जलपल्ली एरिया हो या शाहीन नगर एरिया हो या महेश्वरम का एरिया हो, मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन बिला मज़हब व मिल्लत काम कर रही है। आप जानते हैं माजी में भी जलपल्ली के म्यूनसिपल कमिश्नर मजलिस इत्तेहाद जलपल्ली के म्यूनसिपल के जो चेयरमैन थे जनाब अब्दुल्ला साजिद साहब भी किस तरीके से 5 साल यहाँ पर काम करे, कोई भेदभाव नहीं, हर एरिया में यहाँ पर डेवलप करने के लिए मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन कोशिश करी। अभी भी मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन काम कर रही है। 24 घंटे हमारे मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के ज़िम्मेदारान आवाम के दरमियान में है, आवाम को सहूलत पहुँचाने के लिए मुमकिन कोशिश कर रहे हैं। और एक बात भी मैं बताना चाहता हूँ कि कुछ लोग खाली मीडिया में आकर डाल के चले जाते हैं, मगर मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन और सदर मोहतरम नक़ीब मिल्लत अलहाज बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब एक ऐसे क़ायद हैं, हमेशा हमारे को यही सिखाते हैं कि जब आप आवाम की खिदमत करते हैं जाकर, तो जो काम के लिए जाते हैं वो काम मुकम्मिल करके आना बोलकर। तो ऐसे कई चीज़ें हैं। हाल ही में आप देखिए तकरीबन 20 करोड़ की लागत से किस तरीके से VDCC रोड स्टॉर्म वाटर ड्रेन का काम शाहीन नगर जलपल्ली के एरिया में सदर मोहतरम की नुमाइंदगी के ऊपर मुकम्मिल हुआ है, वो भी देखते हैं आप। और नबील कॉलोनी का इतना देरीना मसला था, कई सियासी लीडर आए खाली वीडियो बना के गए, मगर यही सदर मोहतरम की नुमाइंदगी थी। तकरीबन 32 करोड़ रुपए की लागत से वहाँ पे बहुत बड़ा नाला बनाया गया। आज अल्हम्दुलिल्लाह वहाँ पे नबील कॉलोनी की आवाम बहुत सुकून में है, और वहाँ की आवाम भी यही जानती है कि ये काम करवाने के लिए सदर मोहतरम ने हुकूमत से नुमाइंदगी करके बजट को सेंक्शन करवाए थे। और ऐसे कई चीज़ें हैं, यहाँ पर हम रात और दिन काम कर रहे हैं। मुझे भी सदर मोहतरम जिस तरीके से जिम्मेदारी दिए, मैं और हमारे अहमद साजिद साहब काम कर रहे हैं। तो मेरा बताने का मकसद यही है कि मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन एक प्रैक्टिकल में काम करती है, और आज भी यहाँ पर मीटिंग लेने का मकसद यही है, तमाम अहदेदारों को बुलाकर, और हमने बहुत वाज़ेह अंदाज में वो लोग को कहा कि आप लोग पब्लिक के दरमियान में रहना और पब्लिक का काम करना और फील्ड पर रहना। अल्हम्दुलिल्लाह मीटिंग बहुत कामयाब रही। मैं और हमारे महेश्वरम के इंचार्ज अहमद साजिद साहब और साबिक़ा चेयरमैन अब्दुल्ला साजिद साहब और हमारे मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के तमाम साबिक़ा काउंसलर्स मिलकर ये मीटिंग किए। इस मौके के ऊपर मैं सदर मोहतरम नक़ीब मिल्लत अलहाज बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब का शुक्रिया भी अदा करना चाहता हूँ। साहब यहाँ पर जो बजट देकर यहाँ की आवाम की सहूलत के लिए काम करवा रहे हैं, शुक्रिया। खुदा। आखिर में सुर्खियाँ और एक बार। नायब वज़ीर आला भट्टी विक्रमार्का ने हैदराबाद में मुनक़िदा इंडिया एनर्जी समिट एंड एक्सपो 2026 का किया इफ्तिताह और कहा रियासत क्लीन एनर्जी मरकज़ बनने की समेत तेज़ी से आगे बढ़ रही है। तेलंगाना तहरीक के कारकुनों की शनाख्ती कमेटी के चेयरमैन डॉक्टर के केशव राव की रिहाइशगाह पर आला सतही जायज़ा इजलास, वज़ीर पुन्नम प्रभाकर और दीगर की शिरकत। बीजेपी की मरकज़ी हुकूमत SIR के नाम पर वोटों को हज़फ करने की कर रही है साजिश, तेलंगाना के वज़ीर जूपल्ली कृष्णा राव का इल्ज़ाम। P सुदर्शन रेड्डी के मुजस्समे को मुबैना तौर पर गैर क़ानूनी तरीक़े से हटाए जाने के बाद हनमकुंडा में सूरत हाल कशीदा, कई BRS क़ायदीन गिरफ्तार। एजेंसी इलाक़ों को मुल्क के लिए मिसाली पंचायतों के तौर पर तरक्की दी जानी चाहिए और देही तरक्की में सरपंचों को क़ायदाना किरदार अदा करना होगा, रियासती वज़ीर सीतक्का का बयान। हिट फास्ट और हैदराबाद सिटी पुलिस की बड़ी कार्रवाई,
तकरीबन 130 मुकामात पर छापे मारकर 36 टन मिलावटशुदा घी जब्त। ये थी आज की दिन भर की हमारी खबरें। मुझे इजाज़त दीजिए। हमारे चैनल को यूट्यूब पर सब्सक्राइब, फेसबुक पर लाइक शेयर ज़रूर करें। अल्लाह हाफिज़। मॉडर्न ट्रेंड्स रेडीमेड मेंसवेयर कलेक्शन पेश करते हैं आपके लिए आला अक़साम व मियारी मलबूसात। हमारे यहाँ फॉर्मल, पार्टी वेयर, जीन्स, टी शर्ट और ट्रैक पैंट्स के वसी वैरायटीज़ दस्तयाब है। इसके अलावा मर्दाना घड़ियाँ, सनग्लासेस और मियारी जूतों का शानदार कलेक्शन भी। ऑर्डर्स पर इम्पोर्टेड अशिया भी हासिल की जा सकती है, तो देर किस बात की, आज ही चले आएँ। हमारा पता है मॉडर्न ट्रेंड्स, बीबी का चश्मा रोड, टिकलकुंटा, फलकनुमा, हैदराबाद। मज़ीद मालूमात और राब्ते के लिए प्रोपरेटर मोहम्मद इमाद अहमद से रब्ता करें। 9959541435।